दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो कि है 12। इस चैप्टर में जो हम आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये चैप्टर कई महीने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, चाहे सीबीएसई हो, एनआईओ से कोई भी बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो जिनके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की हर एक बात के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर जो आपके समक्ष होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाने की कोशिश किया जाएगा। साथ में ये डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश शब्द ही होंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is judiciary review. What do you mean to judicial review here? It is a process through which the judiciary examine whether the law of enacted by a legislatures or on action of the executives is in accordance with the constitution or not. The power of the judicial review was first required by the Supreme Court of the United States. Now it is the freely exercised by Supreme Court of India and in many other countries. Our High Court also exercises the power. Judicial review does not mean that every law passed by the legislatures is taken up by their Supreme Court for a review. It only means that a court will be review the law was and when to the get a opportunity. This is possible is a two-way. The first, the court can be review the law if the validity of challenged, and second, here the Supreme Court, High Court may be get an opportunity to review a law in the another situation also. If a person or institution feel that he is the right or violated or the contain benefit due to the him under a law or beginning denied, the court will examine such as a petitions may come to be a conclusions that is a law under which is a relief is sought is a relief unconstitutionally, therefore the relief may not be granted. In a democratic country like India, the power of judicial review is an important guarantees of the right of the people. Besides, the Supreme Court has been to the interpretations of various provisions of Constitution. Its rulings are treated as a law of the land. Let's now see how to the Supreme Court has a play its role on is the custodians of civil liberties and particular of fundamental right. The right to equality is an important right which ensures equality before the law. The right is equality also means absence of special privilege and inequality of treatment. So the Supreme Court is the name of the protective discrimination, has justified the benefit or concession in the form of reservation and relaxation of eligibility condition. And there is a right to be freedom has given to various kind of freedom to all of us, but the freedom of press was not mentioned in the constitution. It was decided by the Supreme Court that the freedom of press as a right is implied in the right to freedom of expression. Thus the court expanded the right to the freedom. The Supreme Court has regarded as a right to be now as the important right to be able to take part in a participatory process of development
and democracy. The court had ruled that the right to be life in Articles 21 impel and included the right to be education and clean environment also. Regarding the delays in the deciding the case, the Supreme Court has held that a delay in a trial constitute denial of justice. It is also laid down that a speedily trial, release on the bail of under trials, free legal aid to be poor and is accused or also is a fundamental right. The Supreme Court has used its power of judicial review and given to various districts decision of safety guard. The right of the individual, it has stood guard of the linguistics right to minorities. The religion right of the people, welfare of the workers and daily wage earners. If has also taken to action to the protect a bounded labor, prevent explanations of women, children and depressed a section of society. No doubt the Supreme Court thought its power of judicial review has granted our right to the various walk of life. The Supreme Court has given to the momentous decision. Through the board is called judicially activisms and the court has given to such a rulings and compulsory use of CNG fuel for the use of public transport vehicles in Delhi so that the pollution could be thought under control. Similarly, for the protection of the lives of the people, it has made for the use of helmet and compulsory for the two-wheelers user and even to the experienced riders. The power of judicial review is an important granted of the right of the people. It does not be allow any violation of the constitution. It is given to several new interpretations to be the constitutionally provision. Thus, it has protected as well as the expanded the constitution. दोस्तों जैसा कि पता ही आपको है कि न्याय न्याय जो है पुनरावलोकन, इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है जिसको आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि न्याय जो है पुनरावलोकन क्या होता है, यानी दोबारा से उसका निरीक्षण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायपालिका यह परखती है कि जो व्यवस्था पालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा कार्यपालिका कोई कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन कि यह जो है शक्ति सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई थी, यानी सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिका में इस तरह का जो है शक्ति दी गई थी, तब भारत ने भी इसको अपना लिया। अब इसका प्रयोग खुले तौर पर यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय या कई अन्य देशों में भी हो रहा है, यानी आज देखा जाए तो पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो पूरे विश्व में बनाया जा रहा है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी इसका प्रयोग करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ नहीं है कि विधायक द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और परखा जाता है। देखिए, इसका अर्थ केवल यह है कि न्यायालय को जब भी कभी यह अवसर मिलेगा वह कानून का पुनरावलोकन करेगा, और यह दो प्रकार से संभव है। प्रथम यही होता है कि जब भी किसी कानून की वैधता की चुनौती दी जाएगी, न्यायालय उसका पुनरावलोकन करेगा, और दूसरी स्थिति यह भी है कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय किसी भी कानून का पुनरावलोकन करने का अवसर प्राप्त होता हो। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था यह अनुभव करे कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है या किसी कानून के अंदर उसे मिलने वाला लाभ उसे नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी याचिका की जांच करते समय न्यायालय इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जिस कानून के अंतर्गत राहत मांगी जा रही है वह अपने आप में सर्वैधानिक माना जाएगा। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुनरावलोकन की शक्ति जो दी गई है, जो अमेरिका से ली गई थी, बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही जरूरी भी है। भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी देखा जाए तो एक सेफ्टी गार्ड है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की सदैव व्याख्या भी करती है। इसका निर्णय देश का कानून समझा जा सकता है। अब आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार जो है नागरिक स्वतंत्रताएं और विशेषताएं मौलिक अधिकार के संरक्षण की भूमिका निभाता है। सामान्यतः अधिकार का महत्वपूर्ण अधिकार है कि जो कानून के सम्मुख समानता सुनिश्चित करती है। समानता के अधिकार का अर्थ विशेष अधिकार अथवा व्यवहार में असमानताओं की जो है अनुपस्थिति भी हो सकती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षणात्मक जो है भेदभाव के नाम पर दिए जाने वाला आरक्षण तथा योग्यताओं को उचित ठहराता है। स्वतंत्रता के अधिकार से हम सबको
कई प्रकार की स्वतंत्रता भी दी जाती है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समझा जाए। इस प्रकार न्यायालय ने स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कर दिया। स्वतंत्रता न्यायालय की जानकारी या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे हम लोकतंत्र तथा विकास की सहभागिता की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा स्वच्छ पर्यावरण की सम्मिलित किया जाए। कहते हैं मुकदमे का निर्णय देने में होने वाली देरी के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि निर्णय देने में देरी करने का अर्थ है न्याय देने में देरी करना। न्यायालय का मत यह भी है कि तीव्रता से मुकदमे का फैसला करना, अभियुक्तों की जमानत पर छोड़ना, निर्धन व्यक्तियों के निःशुल्क कानूनी सहायता देने भी मौलिक अधिकार में सम्मिलित माना गया है। लोग अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय भी दिए हैं। इसमें अल्पसंख्यकों के भाषाई अधिकार, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा कर्मचारियों को दिहाड़ी मजदूर के भले ही के लिए सुरक्षा का प्रदान करना। देखिए, हमारे संविधान में सभी चीज़ों का कानून है, लेकिन इस कानूनों को मान्यता लोगों द्वारा नहीं दी जाती है। इसे बंधुआ मजदूर की रक्षा के लिए महिलाएं, बच्चों तथा समाज के अवग्रस्त वर्गों को शोषण से भी बचाने के लिए कार्रवाई की गई है। निसंदेह सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पूर्वावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अधिकार की रक्षा भी किया है। इसे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं और न्यायिक सक्रियतावाद के प्रभाव में न्यायालय ने कई निर्देश भी दिए हैं। जैसे पर्यावरण को प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में सार्वजनिक यातायात वाहनों में CNG गैस का प्रयोग, पर्यावरण को दूषित करने के स्थान पर स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर अनिवार्य है। इसी प्रकार लोगों के जीवन की सुरक्षा बनाने के लिए इसे दुपहिए चालकों तथा पीछे बैठने वाले सवारी दोनों के लिए हेलमेट प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और यह संविधान का उल्लंघन नहीं होने देती है। नई नई व्याख्याओं द्वारा संविधान के प्रावधानों को एक नया रूप भी दिया गया है और इस प्रकार से संविधान की रक्षा के साथ साथ इसका विस्तार भी किया जा रहा है। The Indian Supreme Court is the most important here. A public interest is a litigations. There is a public interest litigation means PIL. There is a short form here, PIL. The earlier judiciary are including Supreme Court intended to the litigations only from this party. There is the affected directly or indirectly by its. It is ready to decide to the case only under its original and appellate is a judications. But subsequently there is a court is a permit case on the ground of public interest litigations. It means that even people who are not be directly involved in the case may be bearing to be a notice of the court matter of public interest. It is a privilege of their court or to enter to the application for the public interest litigation means PIL. There are public integration here interest. The concept of PIL is introduced by the Justice P.N. is a Bhagwati. And the PIL is important because justice is now easily available to the poor and the weaker section of society. The Supreme Court, on the basis of the letter received from is a journalist, the lawyer and social workers, and even on the basis of the newspaper report, has taken up a number of matters of public interest. Let's take some example to now how the PIL has helped to the people to get a justice. Under PIL is a right of under trials held under illegal detentions has been to restored. The Supreme Court ordered the release of many detainees of without trial on the ground of their personal liberty, which could not be accrued due to judicially is a bureaucratic is a influence. The Supreme Court has also taken up a step to free bonded or laborers, tribes and the slum dwellers. And the woman is a rescue home, and children is a civilians and the home child labor, etc. In case of environmental pollution, the Supreme Court has ordered a closure of a few factories near to Kanpur, Delhi and other places. With more and more discussions coming from the Supreme Court, the scope of PIL
has a vendant is now a person is approached the court through the letter, and if the Supreme Court is believed that a matter is of public interest, it can be considered later to be a petition and the direct of hearing of the matter so that public interest may be protected. The process of PIL has led to the increasing of judiciary activism. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जनहित याचिका यानी PIL। देखिए जनहित याचिका का मतलब क्या होता है। जनहित जनता द्वारा याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, यानी जनता जो है कुछ भी गलत देखता है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने का उसका जो है प्रावधान होता है। आरंभिक अगर दौर में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका केवल उन्हीं के मुकदमे सुनने के लिए स्वीकार करती थी जो प्रत्यक्ष या प्रक्षेप रूप से प्रभावित होते थे। यह केवल मूल्य तथा अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र के ही मुकदमे सुनती थी और उन पर फैसला भी सुनाती थी, परंतु बाद में न्यायपालिका जनहित याचिकाओं पर आधारित मुकदमे में भी सुनने लग गई। इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग भी जिनका किसी मामलों में कोई सीधा संबंध नहीं है न्यायालय में कोई जनहित का मामला ला सकते, यानी जनता को ये जो है प्रावधान दिया गया कि कोई भी गलत चीज़ हो यानी इन्वायरमेंट या कुछ ही भी तरह प्रॉब्लम हो तो न्यायालय में जो है वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यह न्यायालय का विशेष अधिकार है कि वह उस जनहित याचिका को स्वीकार करे या न करे। जनहित याचिकाओं की अवधारणाओं को जो है न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू किया था, यानी इसका श्रेय जो जाता है स्टार्ट करने का PIL का जगह न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू किया था, जो कि बहुत बड़ी पहल थी। जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि इससे समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग को जो है सुलभता से न्याय मिलने लग गया है। पत्रकारों, वकीलों और समाज सेवकों को यहाँ तक कि समाचार पत्र के रिपोर्टरों के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जनहित याचिकाएं स्वीकार भी किया है। आइए यह जानने के लिए कि जनहित याचिका ने किस प्रकार लोगों को न्याय दिलवाया है, कुछ एग्जाम्पल देके हम समझने की कोशिश करते हैं। जनहित याचिकाओं के द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाए गए लोगों को जिन पर मुकदमा चल रहे हैं उन्हें कई अधिकार दिलाए गए हैं, यानी जो व्यक्तियों को बंदी बना दिया गया है अवैध तरीके से, यानी कोई उसका अपराध नहीं था फिर भी उनको जो है जेल में चलाया रखा जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने जो है इस अपील का प्रयोग किया है, यानी PIL का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहाई के आदेश भी दिए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी न्यायिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही की अक्षमता या अयोग्यता को कम नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूर, जनजातियों, गंदी बस्तियों के निवासी, नारी उधर गृह में रहने वाले महिलाएं, बाल सुधार गृह के बच्चे तथा बाल मजदूर को मुक्त कराने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। पर्यावरण के प्रदूषण के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिक निर्णय लेने के कारण जनहित याचिका का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से न्यायालय तक पहुंच सकता है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मामला जनहित का है तो वह उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई के निर्देश भी दे सकता है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके। जनहित याचिकाओं की इस प्रक्रिया में न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला है, यानी देखा जाए तो एक्टिविज्म को काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा मिला है, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति भी जो है उच्च न्यायालय में अपना अपील दे सकता है PIL के रिगार्डिंग। तो कहते हैं बहुत बड़ा पहल है, लेकिन इस पहल को जो है सुचारू रूप से चलाना भी न्याय उचित ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
स्केल को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।